So first I'm going to take the introduction part of this paper, Economic, Business and Commercial Laws. I hope सभी old news syllabus के हैं. तुमने switch over कर लिया? That is the name of the paper, Economic, Business and Commercial Laws. Let us discuss the syllabus or the contents of this paper as per the syllabus prescribed by our institute ICSI. See, as the name of the paper suggests that it has basically been divided into two parts. Economic laws and second is that is the business and commercial laws. One is economic laws, second is business and commercial laws. See, in this paper, the main focus is on this portion, that is the economic laws. That's why you will find that the number of chapters in this portion is less, but we have to go in depth. And the level of knowledge required is expert level knowledge. तो बहुत डिटेल में, जैसे आप कंपनी लोग का पेपर पढ़ते हैं बहुत डिटेल के अंदर इन मॉड्यूल 1, सिमिलर टू दैट पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ लॉस कम है बट एक्चुअली मार्क्स एलोकेशन ज़्यादा है. तो अगर हम देखें इकोनॉमिक लॉस का मार्क्स एलोकेशन दैट इज 65 मार्क्स एंड बिजनेस कमर्शियल लॉ यू विल फाइंड द नंबर ऑफ टॉपिक्स, नंबर ऑफ चैप्टर्स आर मोर, नंबर ऑफ एक्ट्स आर मोर, नंबर ऑफ लॉज हियर कवर्ड मोर, बट हियर द मार्क्स एलोकेशन इज लेस, दैट इज 35 मार्क्स. That's why in the very beginning one has to understand that here we need to go very much in detail in the economic laws portion. And इसलिए इंस्टीट्यूट ने जो प्रिस्क्राइब किया अकॉर्डिंग टू द ICSI, हियर द लेवल ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड एक्सपर्ट लेवल नॉलेज. Expert level knowledge. As far as business and commercial law is concerned, here the level of knowledge required is working level knowledge. क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ एक्ट्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ टॉपिक ज़्यादा है और मार्क्स एलोकेटेड आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट हाफ है, हाफ देन फर्स्ट पोर्शन इकोनॉमिक लॉज. एंड हियर द लेवल ऑफ नॉलेज वर्किंग में तो ओनली मेन प्रोविजन जो सिलेबस में आपके बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे. जैसे मॉड्यूल 1 के अंदर अगर देखें आप, जैसे GIGL एक पेपर था आपका, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन, जनरल लॉ, सो मेनी टॉपिक्स इन वन पेपर, तो वहाँ भी वर्किंग लेवल नॉलेज रिक्वायर्ड था. बट एज फार द कंपनी लॉ सिमिलर टू दैट, तो यहाँ एक ही पेपर के अंदर दो हिस्से हैं और one portion has higher weightage and we require a very in-depth understanding. But as far the other part is concerned, business and commercial laws, here we require only working level knowledge. That is the pattern. Now economic laws को भी इन्होंने क्या किया है, as per the syllabus of ICSI, इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड किया. इकोनॉमिक लॉस Part 1, Part 2, and Part 3 is pertaining to business and commercial laws. Actually, paper has been divided into 3 parts. Paper का नाम Economic Laws and Business and Commercial Laws है. जो Part 3, entire Part 3 deals with business and commercial law. Part 1 and Part 2 both deals with economic laws. तो इसलिए मैंने economic laws के अंदर दोनों part दिखाए. Part 1. Part 1 also contains the economic laws. It's not one law. So many laws are there which are pertaining to economy and they have been covered into one portion. But इसके दो हिस्से बना दिए उन्होंने. Again, Part 1, it has got the weightage of 40 marks. So impliedly, Part 2 has got a weightage of 25 marks. That makes a total of 40 plus 20 plus 65 जो आपका economic loss होगी.
And part 3, because that entire part 3 business and commercial hota hai, again the weightage is 35 marks. So that is the structure of the paper, part 1, 2, 3. There are 3 parts of the paper. And both the first 2 parts, they are pertaining to economic laws, requiring the expert level knowledge. 40 marks for part 1, 25 marks for part 2. And part 3, that is business and commercial laws, working level knowledge, not the detailed, and only 35 marks weight is there. Now again, part 1, part 2, part 3, let us discuss इसमें क्या चीजें हैं, देखिए. Part 1, which is the first portion pertaining to the economic laws. मैंने पहले बताया part 1 and part 2 दोनों कैसे related है? Economic laws. Part 1 का मतलब broad heading is economic laws, उसको भी further 2 part में divide, part 1 and part 2. Part 1 का नाम है Foreign Exchange Management and non-banking financial company, NBFC. That is the name of part 1 of this paper. And what is the marks allocated? 40 marks. That is a part of economic laws. मैंने पहले था part 1 and part 2 together are economic laws. Foreign Exchange Management and NBFC. अगेन मेजर पोर्शन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, थोड़ा सा एक पोर्शन एनबीएफसी के. एनबीएफसी के बारे में आपने मॉड्यूल 1 में भी एसबीईसी चैप्टर में पढ़ा है. सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर के अंदर आपने एक टॉपिक था नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, उसके अंदर यहां भी एक पोर्शन कवर किया गया, बट मेजर पोर्शन है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट. फॉरेन एक्सचेंज इस पार्ट 1 के अंदर क्या क्या टॉपिक्स है, लेट अस ट्राई टू ब्रीफली अंडरस्टैंड. First topic is Reserve Bank of India Act 1934, RBI Act 1934. Second topic is Foreign Exchange Management Act 1999. In short, we call FEMA. Foreign Exchange Management Act 1999. Foreign Exchange Management Act 1999. Number 3, the topic which is there, that is the Foreign Contribution Regulation Act 2010. In short, we call it the FCRA. Foreign Contribution Regulation Act 2010. In short, we call it the FCRA. ये आप देख रहे हैं 2010 का एक्ट है, बट इससे पहले भी वी हैड द एक्ट 1976, वो खत्म होके नया एक्ट आ गया. जैसे कंपनीज एक्ट 2013 आप पढ़ रहे हैं, वी हैड कंपनीज एक्ट 1950 अर्लियर. ऐसे ही फेमा 1999, उससे पहले से मैं डिटेल में जो टॉपिक पढ़ाऊं तो बताऊंगा. वी हैड फेरा 1973, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973. उससे ही पहले वी हैड फेरा 1947, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947. तो ये सब रिप्लेसमेंट है. अब आज के दिन जो लॉ चल रहा है, दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस. नंबर 4, we'll discuss about the foreign trade policy. Foreign trade policy, in short we call the FTP. Foreign trade policy. In short we call it the FTP.
This policy is made once in 5 years. So right now the policy which is going is 2015 to 2020. 2015 से स्टार्ट हुई थी, 2020 तक चलेगी, 2020 में फिर नई पॉलिसी आएगी. Every 5 years the government is making a new policy regarding the foreign trade, and that is a part of your syllabus. Right now the policy which is going on, which is currently operating, is that is foreign trade policy 2015 to 2020. तो आप देख रहे हैं अभी करीब 1.5 साल, and 1st April 2020 से will have got a new policy. That will be 2020, 2025, something like that. Next we have Special Economic Zone Act 2005, SEZ Act 2005. Special Economic Zone Act 2005. In short, we call SEZ, Special Economic Zone. ये सारे बेसिकली आप कह सकते हैं फर्स्ट 5 दिस टॉपिक्स आर पर्टेनिंग टू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट. एंड वन मोर चैप्टर वी हैव, दैट इज द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. In short, we call it the NBFC, non-banking financial companies. That is one topic. Non-banking financial companies, NBFC. तो आप देख रहे हैं पार्ट 1 जो 40 मार्क्स का है, इसके अंदर your first 5 chapters are pertaining to foreign exchange management and the last chapter relating to NBFC. तो मैंने पहले बताया था फोकस एरिया इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट पार्ट 1. जो ओवरऑल पेपर में इकोनॉमिक लॉ इज द फोकस एरिया, तो उसमें इकोनॉमिक लॉ में जो पार्ट 1 एंड वी हैव अनदर पार्ट 2, विल डिस्कस अबाउट द सेम. पार्ट 1 में भी मेजर पोर्शन इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड व्हाट चैप्टर इज पर्टेनिंग टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. जहां तक एग्जाम की बात है, जो मुझे समझ आता है, क्योंकि 40 मार्क्स का है, व्हाट आई फील, क्योंकि पहली बार एग्जाम आपके वैसे तो इस बार भी हुए हैं, एंड मोस्ट प्रॉबली मेरे हिसाब से पैटर्न क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 यहां मिलेंगे, 2 के साथ मे बी चॉइस होगी 2A, एंड बोथ द क्वेश्चन विल बी ऑफ 20 मार्क्स. दैट विल मेक द टोटल ऑफ 40. दिस इज व्हाट आई फील. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ चॉइस हो सकती है 2A. और इफेक्टिवली देखा जाए, जो मुझे समझ आता है, इसके अंदर 12 क्वेश्चन हो सकते हैं. 20 मार्क्स 5-5 नंबर के हो सकते हैं, 4 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे. यहाँ भी 4 होंगे, बट दे विल बी 2 क्वेश्चन, तो इफेक्टिवली 12 क्वेश्चन हो गए. करने आपको यहाँ 4 करने पड़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में. क्वेश्चन नंबर 2 और 2A के साथ चॉइस होगी, इधर एंटायर सेट ऑफ 4 क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एंड मे बी 2A, समथिंग लाइक दैट. और बढ़ाना चाहे तो 4-4 नंबर के 5-5 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट. लेट अस सी क्या पैटर्न है इसका, बट मेरे हिसाब से पैटर्न ये होना चाहिए, इसके अंदर एक चॉइस होगी आपकी क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, मे बी दे विल 2A, एंड मेजर क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द व्हाट वी कॉल द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट. अच्छा, इन सारे चैप्टर्स में भी अगर ध्यान हम जब पढ़ेंगे, तो सबसे मेजर जो चैप्टर दिस वन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, क्योंकि बाकी सब टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक्स हैं. दिस इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999. और इनफैक्ट आपकी स्टडी में फेमा पे मैंने यहाँ 6 लिखा है, आपके स्टडी में 11 टॉपिक दे रखे हैं. तो फेमा को इन्होंने डिवाइड किया हुआ कई सारे चैप्टर्स के अंदर. इट्स अ वेरी बिग लॉ, ठीक है, एंड वेरी वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड लॉज एंड टेक्निकल है. इसको कई सारे चैप्टर्स में डिवाइड, फेमा का एक पोर्शन एक चैप्टर में, एक पोर्शन दूसरा चैप्टर में, समथिंग लाइक. तो मैंने एक ही एक्ट का नाम लिख दिया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, बट आपकी स्टडी में 4-5 चैप्टर बना रखे इसके ऊपर. तो ओवरऑल आपकी स्टडी में देखें, जैसे ये सीरियल नंबर 6 है, तो वहाँ 10-11 तक जाते हैं. तो बेस, लेकिन कई सारे चैप्टर के साथ रिलेटेड एक्ट यही है आपके सिलेबस में. अच्छा, मैंने बताया साहब फॉरेन एक्सचेंज में भी मेन टॉपिक कौन सा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. मैं सबके बारे में ब्रीफली बताऊंगा क्या चीज है. अच्छा, सबसे पहले आरबीआई एक्ट इसलिए, एज फार एज दिस इज कंसर्न, 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 इन सब लॉज में रेगुलेटरी बॉडी आरबीआई है. रेगुलेटरी बॉडी इज द आरबीआई.
and RBI itself is governed by the RBI Act 1934. जैसे आप कंपनी लॉ में आपने पढ़ा होगा ना, there are two types of incorporated, one established under company law that is called companies, another established under special act of parliament, specially passed by the parliament to set up that body. So RBI is also an example of the second case. It's also incorporated as a person established under the RBI Act. तो RBI की जितनी पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी सब कहाँ से डेराइव होती है? RBI Act 1934. तो RBI being the regulatory body pertaining to all these laws, we need to also understand about the RBI composition की RBI composition की governing powers क्या होती हैं, governing board में कौन कौन होते हैं. इसके लिए we need to go through the provisions of RBI Act 1934. बट वो कोई टेक्निकल लॉ नहीं हो, कारण कि इसके अंदर डिटेल की RBI का कंपोजिशन, गवर्निंग बॉडी का नाम क्या है, उसका कंपोजिशन, कौन कौन लोग होते हैं, कैसे अपॉइंट होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, उनके पावर्स क्या होती हैं, ड्यूटीज, समथिंग लाइक दैट. बट वी नीड टू नो दैट, क्योंकि उन सब चीजों का इंपैक्ट इन सारे लॉज में आएगा. दैट इज द रीजन व्हाई RBI Act 19. जैसे कैपिटल मार्केट वाला जो पेपर आपका इन दिस सेम मॉड्यूल, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर कौन है? सेबी. एंड सेबी इटसेल्फ इज गवर्न्ड बाय सेबी एक्ट 1992. तो आपके एक टॉपिक सिलेबस में सेबी एक्ट 1992 इन दैट पेपर, कैपिटल मार्केट पेपर. रीजन भी आप कैपिटल मार्केट में हमारे पढ़ रहे हैं. कैपिटल मार्केट में द रेगुलेटरी बॉडी इज द सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, and itself is governed by a law called SEBI Act 1992. That's why we need to go through the provisions of SEBI Act 9. Similarly यहाँ पे तो इसमें मुझे कुछ खास बताना नहीं, ये RBI के बारे में सब कुछ है. And RBI is established according to the provisions of RBI Act 1934. तो RBI के जितनी भी पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, कंपोजिशंस हैं, वो सारी बातें कहीं ना कहीं, अच्छा अभी बीच में हमने सुना होगा अभी RBI गवर्नर रिजाइन कर दिया, some other person have been appointed, बीच में डीमोनेटाइजेशन हुआ था and all that, वो सब कहीं ना कहीं RBI एक्ट के प्रोविजन से गवर्न हो रहा है. अल्टीमेटली करेंसी से रिलेटेड आप जानते हैं, अगेन हु इज द रेगुलेटर बॉडी, बैंकिंग सेक्टर, करेंसी एंड ऑल दैट, कौन रेगुलेटर है? RBI अगेन. तो RBI इनके अलावा और भी बहुत जगह रेगुलेटरी बॉडी है, लाइक बैंकिंग सेक्टर में रेगुलेटरी बॉडी कौन है? RBI. बट यहाँ हम बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात नहीं कर रहे. तो मैं ही करके सारे लॉस कर हम ब्रीफली बताता हूँ. तो ये आप मैं बता दिया. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में कुछ खास नहीं बताना. अच्छा, एक इसके बारे में मॉड्यूल 1 में भी कई जगह आपने पढ़ा है. नाम देखिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. Are they into banking business or into financing? बैंकिंग में है, फाइनेंसिंग में है, या दोनों में? नाम से पता लग रहा है. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, दे आर नॉट इनटू बैंकिंग, दे आर ओनली इनटू फाइनेंसिंग. अच्छा, बैंक्स होते हैं, दे आर इनटू बैंकिंग बिजनेस एज वेल एज फाइनेंसिंग. बैंकिंग बिजनेस का मतलब क्या होता है? लाइक ओपनिंग द बैंक अकाउंट्स, मूविंग द फंड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू द अनदर. जैसे हम किसी को पेमेंट करते चेक से, या इंटरनेट बैंकिंग से क्या होता है, एक अकाउंट डेबिट हो दूसरा अकाउंट, ये सब बैंकिंग फंक्शन है. एफडी आपकी, सॉरी नॉट एफडी, द ओपनिंग द बैंक अकाउंट, मूविंग द फंड, समथिंग लाइक दैट, दीज आर ऑल द बैंकिंग फंक्शन. डीडी बनवाते हैं हम, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं, ये बैंकिंग फंक्शन है. लेकिन किसी को लोन देना, फाइनेंस प्रोवाइड करना, दैट इज फाइनेंसिंग फंक्शन. तो ये एनबीएफसी बैंकिंग फंक्शंस में इन्वॉल्व नहीं, दे आर ओनली इनटू फाइनेंसिंग, जस्ट लाइक द बैंक्स, ठीक है. बट बैंक्स आर बोथ इनटू बैंकिंग एज वेल एज फाइनेंसिंग. अच्छा, बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर कौन है? RBI. और एनबीएफसी का रेगुलेटर भी RBI है. मैंने बताया यहाँ जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में, इन सारे चीजों के जो पार्ट 1 में है, इन सब का रेगुलेटरी बॉडी कौन है? RBI. दैट्स व्हाई RBI के बारे में समझने के लिए वी नीड टू गो थ्रू द प्रोविजंस ऑफ RBI Act 1934 थ्रू व्हिच द RBI हैज बीन एस्टैब्लिश्ड. दैट्स व्हाई आपके सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक कौन सा रखा? RBI Act 1934. आई होप दिस क्लियर एवरीवन. नाउ मतलब इस पार्ट 1 को समझने जब स्टार्ट करें तो डेफिनेटली स्टार्ट विद RBI Act 1934. तो अकॉर्डिंगली विल, जैसे हम कैपिटल मार्केट में हम स्टार्टिंग में सेबी एक्ट की जरूर बात करेंगे. ना 1 by 1 थोड़ा सा मैं इन चारों लॉस के बारे में बात करूं. FEMA, FCRA, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ब्रीफली देखिए. से अबाउट FEMA, मैं इस लॉ का नेचर बताता हूं क्या है. इफ यू डू एनी ट्रांजेक्शन, एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन, इफ द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स एनी इंटरनेशनल एंगल, इंटरनेशनल एस्पेक्ट उसमें इन्वॉल्व है. अच्छा, इंटरनेशनल कब बोलते हैं हम?
when the transaction is happening between the two persons, one is from India, another is from the other country. That's a become an international transaction. Then in that transaction, whatever the law which regulates the transaction, that law will apply. भाई जो भी ट्रांजेक्शन पे लॉ लग रहा हो तो चलेगा. एडिशनली बिकॉज इंटरनेशनल एंगल ऐड हो गया, एडिशनली उसके ऊपर कौन सा लॉ लगेगा? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999. मतलब दैट्स द नेचर ऑफ दिस लॉ. कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन में इंटरनेशनल एंगल आ गया तो वहां पे जिस भी लॉ से वो आपको ट्रांजेक्शन रेगुलेट हो रहा वो लॉ लगेगा, वो दैट विल कंटिन्यू टू अप्लाई. इन एडिशन टू दैट व्हाट विल अप्लाई? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. दैट इज द नेचर ऑफ दिस लॉ. कई बार देखा गया है लोग पूरा का पूरा लॉ पढ़ जाते हैं, दे डोंट इवन नो व्हाट इज द नेचर, ये लॉ की एप्लीकेबिलिटी कहां पे है. एक बार एक इंटरव्यू में एक बच्चे से पूछ लिया, टेल मी समथिंग अबाउट फेमा, अबाउट द नेचर ऑफ द लॉ कॉल्ड फेमा. अच्छा बच्चों कंटेंट्स याद होते हैं, ये डेफिनेशन याद कर ली, ये 3 नंबर का आता है, ये 5 नंबर का आता है, बट उनको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती. एक्चुअली हम जो सब्जेक्ट पढ़े उसका प्रैक्टिकल क्या यूज है. अब एक चीज बताइए, आज के दिन कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू वर्क इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, या तो आप जॉब करेंगे या जब फ्रीलांसर प्रैक्टिस करें तो अल्टीमेटली क्लाइंट्स भी कौन होते हैं? कंपनीज होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी के. कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कम हुई है या बढ़ रही है? डे बाय डे बढ़ती जा रही है, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है. अच्छा ऐसे सिनेरियो में क्या उन सब ट्रांजैक्शन पे इस लॉ की एप्लीकेबिलिटी बढ़ती जा रही है? अच्छा जब इस लॉ का यूज बढ़ता जा रहा है तो क्या इस लॉ को समझने वाले प्रोफेशनल की डिमांड है? दैट इज द रीजन आपके सिलेबस में मैंने बताया बहुत फोकस है इसके ऊपर. मतलब पार्ट 1 40 मार्क्स का है तो मान के चलिए आपको 25 नंबर का क्वेश्चन नॉर्मली इस टॉपिक से आएंगे, खाली दिस वन टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. दिस इज गोइंग टू बी वेरी मेजर पार्ट. मैंने आपके इंस्टीट्यूट में 10-11 चैप्टर बना रखे हैं पार्ट 1 के अंदर, उसमें 10 साल में 4-5 चैप्टर सब इसी से रिलेटेड, तो बहुत मेजर एरिया है. मैं एक एग्जाम्पल देता हूं. एक इंडियन कंपनी डिविडेंड पे करती है. अगर डिविडेंड पे कर रही है, ऑब्वियसली द ट्रांजैक्शन विल गवर्न बाय द प्रोविजन कंपनीज एक्ट 2013. अच्छा ऐसा हो सकता है इंडियन कंपनी कुछ शोल्डर बाहर क्यों? दे आर रेजिडेंट नॉट इन इंडिया, दे आर रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, फॉरेनर्स हैं, समथिंग लाइक दैट. तो पैसा जो मूव करेगा फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम द इंडियन कंपनी बैंक अकाउंट टू द फॉरेन, केस में इंटरनेशनल एंगल आ गया, केस में कंपनी एक्ट लगेगा. मैंने बार बार कहा जो लॉ लगता है वो लॉ तो लगता रहेगा. साथ ये बात एक मैक्सिमम बच्चों में मारी है, वो लग रहा तो ये नहीं लगे. ये एक पता नहीं क्या है मैक्सिमम बच्चों में देखा है, उस बात को समझते नहीं. एडिशनली मैं बोला हूं ये लॉ किसी को रिप्लेस नहीं करता है, उसकी जगह ये लगे, ये नहीं, ये ऐड हो रहा है. इसका जो लग रहा हो तो लगे, साथ में एक्स्ट्रा लगेगा. इसका तो कंपनी एक्ट भी लगेगा, साथ में क्या लगेगा? फेमा भी लगेगा. बिकॉज अल्टीमेटली डिविडेंड पेमेंट बाय कंपनी एक्ट तो लगेगा लगेगा. आप किसी को भी पे कीजिए, चाहे एक इंडियन शोल्डर को पे कीजिए, फॉरेन शोल्डर को, कंपनी एक्ट तो लगेगा. बट अगर आप फॉरेन शोल्डर को पे कर रहे हैं बिकॉज इसमें इंटरनेशनल एंगल आ गया, तो साथ में क्या लगेगा? फेमा, कंपनी एक्ट प्लस फेमा. तो आप एक इंडियन कंपनी इंडिया में कोई एक्सपेंशन कर दिया, कोई नया प्लांट लगा रही है या अपनी कोई सब्सिडरी बना रही है विद इन इंडिया, तो ओनली द इंडियन कंपनी लॉ इज एप्लीकेबल. लेकिन हम इंडिया के बाहर करेंगे तो क्या होगा? कंपनी एक्ट तो लगेगा, साथ में क्या लगेगा? फेमा, इंटरनेशनल एंगल आ गया. बाहर वाले इंडिया में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर इंटरनेशनल एंगल आ गया, क्या होगा? वॉट एवर उनके कंट्री के जो लॉज लगते हैं वो तो लगेंगे, साथ में क्या लगेगा? फेमा. इट मीन दैट इज द नेचर. हम इंडिया में टूर्स एंड ट्रेवल के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं विद इन कंट्री, तो वहां पे टूरिज्म लॉज लगते हैं. लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो टूरिज्म लॉज के साथ साथ क्या लगेगा? फेमा. जब व्हेन वी आर गोइंग अब्रॉड फॉर टूर्स एंड ट्रेवल, इवन घूमने फिरने जाते हैं उस पर भी फेमा लगता है. इफ यू आर गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर टूर्स एंड ट्रेवल, इवन फॉर लेजर, even that is attracting the provisions because ultimately international angle आ गया, you are going abroad and Indian is going abroad, उसमें भी फेमा लगता है. अच्छा हम नॉर्मली विद इन इंडिया जब हम कोई प्लेस को हम विजिट करते हैं फॉर टूर्स एंड ट्रैवल्स, अकॉर्डिंग टू आवर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी हम कितना ही पैसा खर्च कर सकते हैं, जितनी आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी उसके हिसाब से. इज देयर एनी लॉ टू कंट्रोल दैट? नो. लेकिन अगर आप इंटरनेशनल बाहर घूमने जा रहे हैं तो आप अच्छा वहां पे विल यू स्पेंडिंग द मनी इन इंडियन रुपी और फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन करेंसी, उस कंट्री करेंसी आपको चाहिए जिस कंट्री में, दैट इज पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. तो उस केस में ऐसा नहीं कि साहब व्हाट इज द मनी और डिमांडिंग विल गेट इट. नो, उसके लॉज हैं. तो अल्टीमेटली इट इज आल्सो अट्रैक्टिंग द प्रोविजन ऑफ फेमा. इतना ही आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा फॉर द पर्पस ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल. इससे आप चाहे बोले मेरी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ये है वो है, कुछ भी हो, एक लिमिट तक ही मिलता है. उसके बियॉन्ड तो फिर आपको आरबीआई अप्रूवल चाहिए. उसके बियॉन्ड अगर चाहिए, आरबीआई वांट्स टू नो कि आप क्यों इतना पैसा डिमांड करें, इतना फॉरेन एक्सचेंज. नॉर्मली इतने फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती नहीं है फॉर द पर्पस टू ट्रैवल. अगेन बिकॉज ये सब चीज क्यों हो रही है? बिकॉज फेमा इज अट्रैक्टिंग एंड इट
रेगुलेट सच काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। अच्छा एक चीज, फॉरेन एक्सचेंज जो होता है, फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूड्स फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी एक पार्ट है, फॉरेन एक्सचेंज वाइडर टर्म है, एंड दैट इंक्लूड द, इस डिटेल में मैं जब फेमा पढ़ाऊंगा, डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। क्या फॉरेन एक्सचेंज भी एक नेशनल एसेट है? अच्छा, कंट्री की इकोनॉमी को मेजर करने के क्या पैरामीटर्स होते हैं? एक पैरामीटर होता है पर कैपिटा इनकम। अरे कंट्री की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो कंट्री की इकोनॉमी इज ग्रोइंग। जीडीपी, जीएनपी सुना होगा आपने, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी लेवल क्या है, ऑल दैट, बहुत सारे बैलेंस ऑफ ट्रेड, बहुत सारे पढ़ाओ इकोनॉमिक्स में, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जिससे हम कंट्री इकोनॉमी को मेजर करते हैं, कंट्री इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है। अच्छा, वन ऑफ द मेजर्स सुना होगा आपने, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेक्स रिजर्व बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज, एफ आर फॉरेन ईएक्स एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ये साहब हमारे कंट्री में आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितना है, मतलब हमारे कंट्री के पास और दूसरे कंट्री की करेंसी कितनी है। अच्छा, ऐसे अनाप शनाप विदाउट एनी लिमिट अगर फॉरेन एक्सचेंज देने लग जाएं, क्या हमारे कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ड्रेस्टिकली कम हो जाएगा? क्या उससे क्या रिफ्लेक्ट हो वर्ल्ड में? इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग डाउन। दैट्स व्हाई देयर लॉट ऑफ नॉन्स फॉर दैट। ऐसे नहीं कि फॉरेन एक्सचेंज ऐसे दे दिया जाता है, ऐसे दैट लॉट ऑफ नॉन्स, क्योंकि जो आपको दे दिया आपने दूसरे कंट्री में उसे खर्च कर दिया, तो अल्टीमेटली देखा जाए इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उसने अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से कम हो गया ना। वी नीड टू कंट्रोल दैट। ऐसा नहीं कि फ्रीली हम अलाउ कर दे जितना चाहे, उसके भी रीजन है कि भाई ऐसा क्यों है। तो बंदा बोले साहब मेरी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी तो बहुत है, मेरे तो $1,00,000 $5,00,000 चाहिए फॉर द पर्पज टू से ट्रैवल, यू विल नॉट गेट इट, यू विल नॉट गेट इट। रीजन बीइंग इट्स अ नेशनल प्रॉपर्टी, इट्स अ नेशनल प्रॉपर्टी। और ऐसे देने लग जाए फॉरेन एक्सचेंज तो कंट्री की कहीं ना कहीं फॉरेक्स रिजर्व बहुत बुरी तरह गिर जाएगा, एंड दैट विल रिफ्लेक्ट दैट इंडियन इकोनॉमी इज इन बैड शेप। तो वो चीज कभी भी अलाउ नहीं किया। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अच्छा, बार बार ये बात होती है कंजर्व वाटर, कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अच्छा, क्यों बोलते हैं कंजर्व वाटर? पानी की कमी है। क्यों बोलते हैं? पावर की कमी, कंजर्व, वेस्टेज मत कीजिए। आप जिस घर में, रूम में जिसमें कोई नहीं बैठा है, बोलते लाइटें बंद कर दीजिए, पंखा बंद कर, एसी बंद कर। अच्छा, कोई बंदा बोलते साहब मेरे पास इतना पैसा है, 24 घंटे एसी चलते रहे मेरे घर के सारे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना बिल आएगा मैं पे करूंगा। स्टिल वी से नो, यू शुड नॉट डू दैट। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ पावर। वेस्टेज क्यों कर रहे हैं? इवन इफ यू इवन अफोर्ड इट, वो एक अलग बात है। सिमिलरली आप बोलेंगे साहब मेरे पास इतना, मैं तो $5,00,000 चाहिए घूमने फिरने के लिए, यू विल नॉट गेट इट, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ नेशनल प्रॉपर्टी, इट्स अ नेशनल प्रॉपर्टी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऐसे देने लग जाए तो कहीं ना कहीं कंट्री की इकोनॉमी पे बहुत बैड इंपैक्ट आ जाएगा। इसलिए उसके कंट्रोल्स एंड नॉर्म्स है। सेम कंसेप्ट वहां भी हम बोलते हैं कि साहब अफोर्डेबिलिटी एक अलग एस्पेक्ट है, बट वेस्टेज करना डजंट मेक सेंस। जितनी जरूरत आप यूज कीजिए, बट डोंट वेस्ट द थिंग्स। एनीवे, सो दैट इज द नेचर ऑफ दिस लॉ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। मैंने एक ब्रॉड एक बात बता दी। ये सब आप कोई भी केस उठा के लिख लीजिए जहां पे इंटरनेशनल एस्पेक्ट अगर आ जाएगा तो व्हाट विल हैपन इन दैट केस। अच्छा, हम इंडिया में स्टॉक मार्केट में, शेयर्स में, डिवेंचर्स में, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं, ऑल दैट, या कंपनीज के पब्लिक इशू आते हैं उसमें अप्लाई करते हैं, सिर्फ इंडियन लॉज लगते हैं। पता है इंडियन लॉज में कंपनीज एक्ट एंड कैपिटल मार्केट लॉ लगते हैं। लेकिन अगर बाहर वाले किसी इंडियन पब्लिक इशू में अप्लाई कर, दे कैन अप्लाई इट, इन दैट केस क्या लगेगा? कंपनीज एक्ट, कैपिटल मार्केट लॉज प्लस क्या लगेगा? फेमा लगेगा। हमें एक इंडियन कंपनी इंडिया में पब्लिक इशू ला रही है, ओनली कंपनीज एक्ट, कैपिटल मार्केट लॉज। लेकिन इंडियन कंपनी जो इंडिया से बाहर पब्लिक इशू, जीडीआर बोलते हैं, ग्लोबल डिपॉजिट सीट, वो आपको कैपिटल मार्केट में आएगा, ठीक है, जीडीआर दैट इज, उसमें एग्जिस्टिंग लॉ जो लग रहे हैं साथ में क्या लगेगा? क्योंकि इंटरनेशनल एंगल आ गया, इंडियन कंपनी बाहर पब्लिक इशू ला रही है। तो व्हाट विल हैपन? द लॉ व्हिच एडिशनली विल अप्लाई, दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। दैट्स द नेचर ऑफ दिस लॉ कॉल्ड फिम। तो मैंने ब्रीफली आपको शॉर्ट में बता दिया क्या चाहिए। और मेजर थ्रस्ट एरिया इन पार्ट 1 विच ऑफ 40 मार्क्स इज दिस टॉपिक। बहुत सारे आपने थोड़ा सा मॉड्यूल 1 में भी पढ़ा है, एफडीआई पढ़ा था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब बाहर से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है, एक पढ़ा हुआ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया, क्या सब चीजें भी फेमस कवन होती है। तो वहां तो खाली ब्रीफ में था, मैंने आपको बोला भी, जब मैंने जो बच्चे में से पढ़ चुके हैं याद हो, मैंने बोला ओनली ब्रीफ, डिटेल में आपको यहाँ पे, इनफैक्ट मेरे हिसाब से वहां कवर ही नहीं करते, यहाँ पे जब डिटेल में है, बट वहां थोड़ा सा उन्होंने एसबीसी में डाल रखा था, याद है, सेटिंग अ बिजनेस एंटिटी में एक चैप्टर था, उसके अंदर ऐसी चीज डाल रखी थी, बट एक्चुअली सब फेमा से कवन होता। वहां भी मैंने कहीं ना कहीं फेमा का रेफरेंस दिया होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। एनीवे, दूसरा जो टॉपिक है इसके अंदर, दैट इज अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010।
In short, we call it the FCRA. Foreign Contribution Regulation Act 2010. See, फॉरेन कंट्रीब्यूशन ये है क्या कंसेप्ट, मैं मुझे बिल्कुल बता देता हूं. मान लो एक फॉरेन सोर्स है. फॉरेन सोर्स के अंदर बाहर की सब चीजें कवर हो जाती हैं. बाहर के सिटीजन्स, फॉरेन सिटीजन्स, फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन कंपनीज, फॉरेन ट्रेड एसोसिएशन, फॉरेन एनीथिंग, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फॉरेन सोसाइटी, बाहर की कुछ भी है वो सब हमारे लिए क्या फॉरेन सोर्स. बाकी डिटेल में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर. ये किसी इंडियन को अगर करेंसी दे रहे हैं, पैसा, या कोई आर्टिकल दे रहे हैं, सामान, या कोई सिक्योरिटी लाइक शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, समथिंग लाइक दैट, then this is called as the foreign contribution. But the foreign contribution means donation, delivery or transfer made by a foreign source. किसी का डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफर, करेंसी का, आर्टिकल का या सिक्योरिटी, किसको, टू सम इंडियन, देन इट इज कॉल्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन. कह सकते हैं दिस इंडियन इज रिसीविंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन. क्लियर. अच्छा, ये लॉ नाम देखिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. ये इस तरह के ट्रांजेक्शन को रेगुलेट करता है. अच्छा, इस केस में हु इज रिसीविंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, इंडियन रिसीविंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन. अच्छा, ये रेगुलेट हर केस में नहीं करता, ये रेगुलेट्स द एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, हु इज एक्सेप्टिंग, इंडियन, इन सर्टेन केसेस. It regulates the acceptance of foreign contribution by Indians in certain cases. Certain cases क्या है देखिए. मान लीजिए जो इंडियन है, he is holding some influential position in the Indian society. He is holding some influential position in the Indian society. मान लीजिए इंडियन सोसाइटी में इसकी कोई influential position है, holding a very influential है, he is a politician. या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे एमपी है, मिनिस्टर है, समथिंग लाइक दैट, या आप कोई कोर्ट के जज हैं, आप मीडिया पर्सन है, मे बी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, दे आर ऑल इन्फ्लुएंशियल पीपल. अच्छा, आपको नहीं लगता देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई फॉरेन सोर्स ऐसे लोग को जो इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में है, उनको इस तरह की चीज देके कुछ ऐसी चीजें कराएं जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेंस्ट है, एंड इट इज बेनिफिशियल फॉर द फॉरेन सोर्स. किसी पॉलिटिशियन, अच्छा इट्स लाइक अ ब्राइब, कि हम आपको पैसा दे रहे हैं या कोई सामान दे रहे हैं या कोई सिक्योरिटी, आप बदले में इंडियन गवर्नमेंट की बहुत सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को लीक कर दीजिए, या डिफेंस फोर्सेस की बहुत सारी प्लानिंग को आप लीक कर, समथिंग लाइक दैट. डोंट यू थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स. तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये लॉ बनाया गया, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010. और यहां पे क्या किया गया, जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं इन द इंडियन सोसाइटी, उनके पास कंप्लीट बैन लगा दिया, प्रोहिबिशन लगा दिया, दे कांट एक्सेप्ट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन. अच्छा, क्योंकि अगर आप अलाउ करेंगे तो व्हाट विल हैपन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट सेइंग सब लोग ऐसा ही करेंगे, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी. तो बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन, क्योंकि जब नजर आ रहा है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है तो क्यों नहीं इसको रोका जाए. तो इन्होंने क्या कि आइडेंटिफाई कर रखा है लॉ के अंदर, सब सेक्शंस में दे रखा है कि साहब दीज आर द पर्संस एंड होल्ड, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मिनिस्टर्स हैं, या जजेस हैं, या मीडिया के लोग हैं, समथिंग लाइक दैट, दीज पीपल कैन नॉट एक्सेप्ट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन. अच्छा, by prohibiting them to accept the foreign contribution, ultimately what we are trying to protect our national interests. नहीं तो देश के अगेंस्ट काम होना शुरू हो जाएगा. ये लोग क्या करेंगे, बाहर से बहुत जगह से इनको ऑफर्स आएंगे कि आप हमसे इतना पैसा ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, और बदले में अपने कंट्री को नुकसान. डोंट यू थिंक दैट इज अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट. दैट्स व्हाई टू प्रोटेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट वी हैव लॉ लाइक दिस कॉल्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010. ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है. अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी प्रोहिबिशन है. आप जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज आर नो डाउट वेरी, अच्छा पॉलिटिकल पार्टी इज लाइक एन एंटिटी. कांग्रेस इज एन एंटिटी, ये सुनो, आम आदमी पार्टी एंटिटी, बीजेपी इज एंटिटी. तो ये इनके ऊपर भी प्रोहिबिशन है कि पॉलिटिकल पार्टी कांट एक्सेप्ट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन. बीच में एक बार इशू बना था आम आदमी पार्टी पे कि इन्होंने एफसीआरए के वायलेशन में फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया है, मतलब डोनेशन वगैरह बाहर से कुछ पैसा आया था एंड दैट्स अ वायलेशन, बट उसमें टेक्निकली एफसीआरए का प्रोविजन कवर नहीं हो रहा था, दैट्स व्हाई बची है. अभी आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एक बात ब्रीफली, जैसे इससे पहले 1976 का एक्ट था, बहुत पहले
बाहर की किसी कंपनी ने, अच्छा बाहर की कंपनी फॉरेन सोर्स है, उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी को डोनेशन दिया था। अच्छा पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन ही पैसा आ रहा है, क्या हो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, क्या लेना अलाउड है? नो, दोनों ले रखा। अच्छा इंटरेस्टिंग चीज देखिए, वो उस समय 1976 का एक्ट चलता था, पहले ना फॉरेन कंट्री रेगुलेशन 1976, वो खत्म हो गया, 2010 में नया एक्ट आ गया। अच्छा इशू देखिए, दोनों ने उस लॉ का वायलेशन कर रखा। तो किसी ने क्या किया कि ये केस फाइल कर दिया कोर्ट में कि साहब इनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए, ऑल दैट। अभी सेंटर में जो बीजेपी की सरकार है, इन्होंने क्या किया, कमाल देखिए आप। अच्छा वो जो केस फाइल होता है अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ दिस न्यू लॉ, द ओल्ड लॉ, बिकॉज जिस समय उन्होंने लिया था दैट ओल्ड लॉ वाज गोइंग ऑन, उस समय के बाद पुराना केस, मतलब केस अभी भी चल रहा है लेकिन एक्चुअली बहुत पुरानी बात है। अच्छा जब ये केस अब फाइल हुआ है, लेकिन एक्चुअली द ट्रांजेक्शन वाज एट द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन दिस लॉ वाज ऑपरेटिंग, बट केस अब फाइल हुआ है। अब एक सवाल उठता है कि इन्होंने क्या किया, इस लॉ को अमेंड किया बीजेपी गवर्नमेंट ने, और उसमें उस तरह के ट्रांजेक्शन जिसके अंदर फंस रहे थे, उस ट्रांजेक्शन को मतलब उस लॉ को चेंज कर दिया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कि साहब अकॉर्डिंग टू दैट लॉ वो ट्रांजेक्शन इनवैलिड नहीं है, वो अलाउड है। अच्छा अब आप लॉ को अमेंड कर रहे हैं कब? तो अब कर रहे हैं, अभी बीजेपी सरकार 2014 में आई, आप जानते हैं। अच्छा अब आप अमेंडमेंट कर रहे हैं, क्या जिस समय अमेंडमेंट करी लॉ इफेक्टिव है? ये तो खत्म हो चुका। तो सोचिए जो लॉ ऑलरेडी डेड हो चुका है उसको बैक डेट से अमेंड कर रहे हैं। इसको भी बहुत सवाल उठे में मीडिया में कि साहब ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, हाउ कैन द सम लॉ व्हिच हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ये तो खत्म हो चुका है, इसकी जगह ना अब उसको आप अमेंड कर रहे हैं बैक डेट से, जस्ट अपने आप को बचाने के लिए। अच्छा एक चीज नहीं, बीजेपी तो ये कर रही है, गलत कर रही है, कांग्रेस उसको अपोज कर सकती है, वो कैसे करे? उसने भी सेम कंपनी से ले रखा है। तो कई चीजें ना आप देखोगे, मैं क्लास में ऐसे बोलता रहता हूं हर सब्जेक्ट में, मोर यू नो द लॉ मोर यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन सोसाइटी। समाज में हर चीज नहीं, मैक्सिमम लोग क्या था, वो न्यूज़पेपर भी ठीक से पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको बहुत सारा अच्छा न्यूज में क्या होता है, बहुत सारी पॉलिटिकल न्यूज होती है, पॉलिटिकल न्यूज के अंदर बहुत सारे लीगल एंगल्स होते हैं, कोई चीज क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो उसके अंदर लीगल एंगल है कि लॉ के अकॉर्डिंगली ये चीज गलत है और ये पार्टी या ये पॉलिटिशियन ऐसा कर रहा है। बट क्वेश्चन है, इफ आई एम नॉट अवेयर अबाउट द लॉज, आई कैन नॉट रियली एनालाइज कि कहाँ गलत और क्या सही है, तो पता ही नहीं चलेगा, हम न्यूज को अप्रिशिएट ही नहीं कर सकते। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि साहब इवन न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए भी आपको बहुत अच्छी लीगल अंडरस्टैंडिंग, अगर अच्छे से पढ़ना है, ढंग से एक ही चीज को समझना है। इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं, आपको जब तक बिजनेस वर्ल्ड की, बिजनेस लॉज की, वो कॉर्पोरेट सेक्टर है, उनके बारे में जो लॉज है, नॉर्म्स है, अगर नहीं क्लैरिटी, आप पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं, आधी मैक्सिमम चीजें समझ नहीं आएगी। एनीवे, सो दैट इज द ब्रीफली द नेचर ऑफ दिस लॉ। तो ये रेगुलेट करता है और बहुत सारे केसेस में जो हाइयर इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनके ऊपर टोटल बैन लगा रखा है। वो उसमें इन्फ्लुएंशियल पर्सन में पोजीशन में जो है उसमें इंडिविजुअल्स भी है और नॉन लाइक बाय पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट एन इंडिविजुअल, इट्स अ एंटिटी। तो बहुत सारी और बॉडी को जो मिसयूज कर सकते हैं अपनी पोजीशन का, उनके ऊपर बैन लगा रखा है। दे कैन नॉट एक्सेप्ट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, दैट्स अ एंटायर पर्पस ऑफ। अध्यक्ष इस तरह के ट्रांजेक्शन में फीमा भी लगता होगा नहीं? बाहर से चीज आ रही है कहां पे? इंडिया। अच्छा, इज इट प्रोहिबिटिंग इन एवरी केस ओनली सर्टेन पीपल हु आर इन द इन्फ्लुएंशियल पोजीशन? सबको मना करा फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने के लिए या ओनली फॉर सर्टेन पीपल हु मे मिसयूज द पोजीशन? आम आदमियों को दिक्कत है, आम आदमी पार्टी नहीं, वो पॉलिटिकल पार्टी होगी। आम आदमी जो आप हम अगर ले तो हमें क्या, ये देखिए मैंने कहा एक इंडियन अगर यहां से ये सब चीज ले रहा है तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन है। बट दिस लॉ डज नॉट प्रोहिबिट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन एवरी केस, ओनली सर्टेन केसेस विच आर द पीपल हु आर इन द इन्फ्लुएंशियल पोजीशन। लेकिन इसके अलावा अलग से ही प्रोविजन है, अगर गवर्नमेंट को डाउट हो जाए किसी के ऊपर जो इन सेक्शंस में कवर नहीं हो, इन्फ्लुएंशियल पर्सन कवर नहीं हो रहा, और वो अगर कुछ मिसयूज हो, तो ऐसा भी तो सकता है भाई जो चीज हमें नजर आई ये इन्फ्लुएंशियल लोग, बट ऐसा भी कई वो होता है जो इन्फ्लुएंशियल नहीं है बट वो भी गड़बड़ कर रहे हैं, उसके लिए प्रोविजन लॉ में है कि साहब उनके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। बट एक्चुअली जो आइडेंटिफाइड कि ये तो गलत कर ही सकते, देयर इज लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी, उनको तो मना ही कर रखा है, दे कैन नॉट एक्सेप्ट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, दैट इज द एंटायर। डोंट यू थिंक इस तरह के ट्रांजेक्शन में फेम भी लगता होगा? अगर कोई ले रहा है, जिनको लेना अलाउड है जनरली, ठीक है, क्या वहां पे खाली एफसीआरए लगता होगा, फेमा भी लगता होगा? फेमा बिकॉज इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, तो ये भी अल्टीमेट में ना, फॉरेन एक्सचेंज जहां आ गया वहां पे ये सब चीज आपको बात होगी आपकी। आई होप दिस क्लियर टू एवरीवन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक अंडर द सेम पार्ट 1, दैट इज द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी।
In short, we call it the FTP, Foreign Trade Policy. FTP. See, foreign trade policy जो मैंने बताया, this policy made after every 5 years, और अभी फिलहाल ये चल रही है. इस पॉलिसी का फोकस क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है मैं बता दूं आपको. बेसिकली टू एनहांस द एक्सपोर्ट, गुड्स का, सर्विसेज का ज्यादा एक्सपोर्ट हो. दैट इज द फोकस ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ कॉल्ड फॉरेन टॉपिक कॉल्ड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 टू. और इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव यही है. मैं आपको रीजन समझाया था क्यों, व्हाई दिस पॉलिसी इज एमिंग एट दिस, क्यों है. अच्छा, जो इंडिया में जो लोग गुड्स बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, if they are confining their business only to Indian territories, कैसे थे एक स्टेज पे स्टैग्नेशन आ जाएगा. भाई इंडिया में जितना लोग बाय कर सकते उतना ही करेंगे, उसके बियॉन्ड क्या करेंगे. तो अगर हम चाहते हैं कि टोटल वर्ल्ड में जितना बिजनेस होता है, टोटल अक्रॉस द एंटायर वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, वहां हमारी प्रेजेंस बढ़ती जाए या हमारा रोल बढ़ता जाए, तो उसके लिए डू वी नीड टू कन्फाइन ourselves only to the Indian market, or we should explore the foreign market also. आपको अगर पूरे वर्ल्ड में जितना व्यापार, जितना बिजनेस होता है, उसमें अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाना है, we want to improve our share in the total global trade. तो उसके लिए don't you think we need to explore the foreign market also? And we are not supposed to confine only to the local markets, only to the domestic market. And हमें बाहर, और बाहर का मतलब एक्सपोर्ट. अच्छा, इससे बहुत सारे फायदे होंगे. अच्छा, जब इंडियन गुड्स, मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग एक्सपोर्टेड, तो टोटल ग्लोबल ट्रेड के अंदर क्या इंडिया की हिस्सेदारी बढ़ेगी. एक. अच्छा, इससे क्या ब्रांड भी बनता है. अच्छा, वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री में ऐसा हो कि सब इंडियन गुड्स एंड इंडियन सर्विसेज आर बीइंग अप्रिशिएटेड बिकॉज ऑफ द क्वालिटी एंड अदर थिंग्स. तो धीरे बोले साहब ये मेड, अगर ऐसा है तो धीरे क्या हुआ, मेड इन इंडिया किसी गुड्स के ऊपर लिखा हुआ, इसका मतलब पीपल विल अप्रिशिएट इट्स अ क्वालिटी गुड्स, इट्स अ क्वालिटी गुड्स. तो इससे ब्रांडिंग भी बढ़ेगी. नॉट ओनली विल बिकम द इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द टोटल ग्लोबल ट्रेड, बट इससे ब्रांडिंग भी बढ़ेगी आपको, इंडिया की ओवरऑल ब्रांड. अच्छा, उससे बहुत सारे फायदे होंगे. अच्छा, इंडियन जब बाहर जाके सेटल होना चाहे, कोई इंडियन कभी इंडिया के बाहर कोई बिजनेस करना चाहे, बाहर अपनी कोई सब्सिडरी सेटअप करना चाहे, क्या आसान होगा. बिकॉज आपको पहचानते हैं लोग समझते हैं सब दे आर ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग द क्वालिटी गुड्स. तो इसके मल्टीपल इंपैक्ट्स हैं. एंड दैट्स व्हाई इस पूरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव बेसिकली किसी तरह एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए. मोर एक्सपोर्ट मीन्स बेसिकली अल्टीमेटली वी आर पोजिशन एट अ बेटर एंड वी विल पोजिशन एट अ बेटर, यू कैन से इन द टोटल ग्लोबल ट्रेड. तो एक ब्रांडिंग भी बेटर होती है, कंट्री को एक रिस्पेक्ट भी मिलती है अक्रॉस द वर्ल्ड की सब इस कंट्री गुड्स या सर्विसेज और ऑल दैट. ठीक है, दैट्स द एंटायर आइडिया. अब सवाल उठता है कि सर एक्सपोर्ट को कैसे इनहेंस किया जाए. इस पॉलिसी के अंदर बहुत सारी स्कीम्स हैं, वो सब अलग अलग स्कीम्स हम डिस्कस करेंगे और अलग अलग स्कीम अलग अलग तरह काम करेंगे, लेकिन सबका एंड रिजल्ट पता क्या है. वो स्कीम एक या दूसरे तरीके से एक्सपोर्ट को इनहेंस करने के लिए हेल्प कर रही है. अच्छा, उस स्कीम्स के अंदर बहुत सारे इंसेंटिव दिए गए हैं कि साहब ऐसा करेंगे तो गवर्नमेंट आपको बहुत सारे बेनिफिट देगी. अच्छा, आइडिया इज बेसिकली कैसे एक्सपोर्ट बढ़े. अच्छा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इंडिया की टोटल ग्लोबल ट्रेड में हिस्सेदारी बढ़ेगी, will get a better respect, will command a better position in the total global trade, something like that. तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो स्कीम्स के अलग अलग नाम है, एक स्कीम नहीं कई सारी स्कीम्स है, बट अल्टीमेटली सारे स्कीम का एंड रिजल्ट क्या है, किसी तरीके से क्या बढ़े एक्सपोर्ट में. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. अच्छा, कई बार ऐसा देखा गया है इंडिया में कई ऐसे गुड्स हैं जिनकी दूसरे कंट्री में डिमांड हो सकती है, लेकिन शायद वहां पे वैसे गुड्स बनाने वाले इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर नहीं किया. एक्चुअली जब नए गुड्स होंगे जो अभी बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो रहे, तो एकदम इनिशियली तो आपको लगता है कि एकदम बिजनेस एकदम एग्जैक्ट इन द वेरी बिगिनिंग बिजनेस अचानक आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा. इट विल टेक टाइम. हर बिजनेस में होता है जेस्टेशन पीरियड होता है. तो गवर्नमेंट ने बोल दी ऐसी स्कीम्स हैं कि जो इस तरह के प्रोडक्ट आपको अगर अभी तक एक्सपोर्ट नहीं हो रहे, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं
इनिशियली आपको मार्केटिंग का जो खर्चा है, आपको एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, उस समय बहुत सारा खर्चा हम बियर करने तैयार है। व्हाट इज दैट? अच्छा, गवर्नमेंट ऐसा करके स्कीम के अंदर कि आपको बेनिफिट दे रही है कि सारे खर्चे हम बियर कर लेंगे, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट इनकरेजिंग द पीपल टू एक्सपोर्ट द न्यू काइंड ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, न्यू काइंड ऑफ प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या एक्सपोर्ट, टोटल एक्सपोर्ट क्या होगा? बढ़ेगा, एंड अल्टीमेटली क्या होगा? हमारी पोजीशन टोटल ग्लोबल ट्रेड में क्या होगी? इंप्रूव होगी। दैट्स द एंटायर आइडिया। ऐसे जिन कंट्री में जैसे कई गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, बट एक्सपोर्ट्स आर बीइंग मेड ओनली टू सेलेक्टेड कंट्रीज, नॉट टू द अदर कंट्री। और भी बहुत सारे कंट्री जहां पे एक्सपोर्ट किया है, गवर्नमेंट बोलती है आप नए कंट्री में एंटर कीजिए जहां पे अभी तक एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यू आर ऑलरेडी डूइंग एक्सपोर्ट, यू आर ऑलरेडी एक्सपोर्टर, बट यू आर एक्सपोर्टिंग ओनली टू लिमिटेड फ्यू कंट्रीज, व्हाई नॉट एक्सपोर्ट टू द अदर कंट्रीज ऑल्सो। अच्छा, वहां पे फिर मार्केट बनाने में टाइम लगेगा, तो बहुत सारे खर्चे गवर्नमेंट बियर करे। अगेन व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट स्कीम? एक तो नए प्रोडक्ट, न्यू टेरिटरीज, आइडिया। अच्छा, जितने वैरायटी बढ़ेगी एक्सपोर्ट आइटम की, क्या होगा? एक्सपोर्ट लेवल बढ़ेगा। जितने नए टेरिटरी में एंटर करेंगे, एक्सपोर्ट लेवल बढ़ेगा। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, मतलब एक नहीं, बहुत तरह की स्कीम्स हैं, और सारे स्कीम का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली enhance the export level, and why? So that we become a very significant player in the total global. अच्छा, तो ये has China become a very significant player in the total global trade? हर चीज, हर प्रोडक्ट, मतलब मैं तो उस दिन देख के आप भी जानते होंगे, एप्पल तक का फोन आपको चाइना में बन रहा है। यूएस कंपनी है, ठीक है, इंडिया के कितने प्रोडक्ट खाली इंडिया में ठप्पा लगता बन के चाइना से आ रहा है। कितनी सारी चीजें हैं, एक्चुअली वो इंडियन कंपनी है, लेकिन एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है? चाइना में हो रही है। तो चाइना ने कहीं नहीं इसको बहुत एग्रेसिवली आपको, तो वी आल्सो ट्राइंग टू डू दैट, वी आल्सो ट्राइंग टू डू दैट। और भी बहुत चीज, जैसे एक स्कीम है। अच्छा, नॉर्मल कोर्स में एक इंडियन कंपनी बाहर से कोई मशीन इंपोर्ट करती है, क्या कस्टम ड्यूटी लगी? इंपोर्ट करें तो इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी की बात। इसके अंदर स्कीम है कि आप अगर मान लें मशीन बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं और मशीन से गुड्स बना के गुड्स को एक्सपोर्ट करोगे आप, तो हम इंपोर्ट ड्यूटी माफ कर देंगे। अच्छा, उस इंपोर्ट ड्यूटी को माफ करवाने के लिए क्या बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे, सब मशीन क्योंकि अदरवाइज इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, आप इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देना चाहते, तो आप क्या करते हैं? गुड्स बना के यू आर ट्राइंग टू एक्सपोर्ट। अल्टीमेटली इंपैक्ट कहां पे आएगा? एक्सपोर्ट लेवल विल। उस बेनिफिट को लेने के लिए मुझे इंपोर्ट ड्यूटी मेरी माफ हो जाए, उसके लिए क्या दे विल ट्राई टू डू द एक्सपोर्ट। अल्टीमेटली क्या हो रहा है? क्या बढ़ रहा है? एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। तो मैंने एक नहीं, इसमें कई तरह की स्कीम्स है, न्यू काइंड ऑफ प्रोडक्ट, न्यू कंट्रीज, ठीक है, इन डूइंग द इंपोर्ट ऑफ सम कैपिटल गुड्स लाइक मशीन्स एंड ऑल दैट, and manufacturing and then exporting, again import duty waived off. ये सारी schemes का ultimate objective क्या basically? In one way or the other enhance the export level so that we become a more and more significant player in the total global trade. That's the entire idea. कि सब overall जो global trade है उसके अंदर हमारी position strong होती जाए, और उससे goodwill भी बनती है। Obviously आपको लोग पहचानते हैं, Indian goods, more Indian goods are being used across the world. Indians को भी respect मिलती है, Indian companies को, Indian entity, Indian government, everyone, entire country gets a more respect. तो ब्रांडिंग होती है, ब्रांड इंडिया में बनता है आपका। दैट इज द एंटायर पर्पस ऑफ दिस। देखिए सब चीजें क्या होता है, मैं जरूर डिस्कस करता हूँ कि आप पुलिस पॉलिसी, मैंने देखा लोगों ने, अच्छा ये सब एग्जाम में कोई नहीं पूछता, एग्जाम में आएंगे पॉलिसी की स्कीम के बारे में बताओ, स्कीम, बट लोगों मैंने देखा, बट आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, पर ये तो मैडम पढ़ क्या रहे हैं, हम प्रैक्टिकल लाइफ में से क्या यूज करेंगे? वहीं तो दिक्कत आ जाती है। क्या होता है, सब पढ़ा लिया, सब कुछ जो है, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ पता ही नहीं क्या इसका यूज है। एज ए जीरो होता है, उस सब आगे कुछ यूज ही नहीं कर पाते। लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स आर फेलिंग इन देयर करियर्स। रीजन भी उन्होंने कभी सब्जेक्ट्स को उस तरह पढ़ा ही नहीं जैसे पढ़ना चाहिए। आगे सारी मारा मारी क्या हो रही है, किसी तरह रटा रूड़ा मार के एग्जाम पास कर ले, और लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि साहब उनको पता नहीं लाइफ में जाके आगे धक्के खाने पड़ते हैं। एनीवे, एक टॉपिक इससे और जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005। SEZ Act, Special Economic Zone Act 2005। एक्चुअली स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसे कहते हैं? इंडिया में गवर्नमेंट ने कई सारे SEZ सेटअप करवाए, मतलब कई सारे एरियाज आइडेंटिफाइड एंड दे आर कॉल्ड SEZ, बेसिकली ज्योग्राफिकली विद इन द कंट्री, बट दैट इज ट्रीटेड लाइक एज इफ इट नॉट अ पार्ट ऑफ द कंट्री। है कंट्री का पार्ट, लेकिन उसको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि कंट्री से बाहर, उसके सब लॉज अलग चलते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होगा। जैसे नोएडा के अंदर एक SEZ सेटअप है, तो जितना एरिया SEZ है उसके आप रोड जाके देखना, वो रोड अलग ही नजर आएगी।
अच्छा बाकी नोएडा में हो सकता है पावर कट हो जाए, लेकिन उसमें नहीं होगी, तो उसका सब कुछ वहां टैक्सेशन अलग तरह की चलता है, अरे सब कुछ अलग, मतलब वहां पे होता है कई बार वही चीज आप SEZ के बाहर गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसको बेच के पैसा जो कमा रहे हैं उसको इनकम टैक्स लग रहा है, जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन वहां पे कर रहे हैं तो वहां पे इनकम टैक्स एग्जेम्पशन दे रखी है, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट दे रखे हैं। आइडिया ये है इसके पीछे, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, उसको SEZ को गवर्न करने के लिए लॉ बना के SEZ, और आप देख रहे हैं ये भी कोई बहुत पुराना कंसेप्ट नहीं है, 2005 में एक्ट बना है। एक्चुअली आइडिया की पूरे कंट्री के अंदर कुछ स्पेशलाइज एरियाज हो जाए, लाइक दिस लेट्स से SEZ, और जिसको हम स्पेशल बेनिफिट देके वहां पे बिजनेस करने में लोगों को हेल्प करेंगे। साहब यू कैन डू द बिजनेस इन वेरी गुड वे, दैट्स द एंटायर आइडिया। इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट है, टैक्स में बेनिफिट है, ये बेनिफिट, सो दैट मोर एंड मोर बिजनेस एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, GDP सब पे इंपैक्ट आता है, एंड दैट्स आइडिया। तो इस तरह के एरियाज को बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। पूरे कंट्री के अंदर कई सारे SEZ आपको सेटअप हो रखे हैं, ठीक है, और उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है हर तरीके से, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, लॉज वाइज, टैक्सेशन वाइज, नंबर ऑफ बेनिफिट्स आर गिवन so that more and business can flourish. That's the entire idea. And to regulate such kind of thing, we have a law called Special Economic Zone Act 2005. अच्छा एक अगर ये SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो उसके बाहर का जो एरिया है जो SEZ नहीं है उसको बोलते हैं DTA, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। DTA, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। अच्छा कंट्री के अंदर मेजर पार्टी DTA है, कुछ कुछ जगह क्या है SEZ सेटअप है। अच्छा मैंने बताया कि सब फॉर द है, अच्छा दोनों इंडिया का पार्ट है। कंट्री में कुछ कुछ एरियाज आपके SEZ पॉकेट्स होते हैं, छोटे छोटे आपके एरियाज आइडेंटिफाइड है गवर्नमेंट का, उस पूरा एकदम सेपरेट नजर आएगा वो, उसके अलावा बाकी सब क्या है DTA। अच्छा मैंने बोला फॉर द, है तो इंडिया के पार्ट है, फॉर द पर्पस ऑफ लॉज क्या इसको हम फॉरेन टेरिटरी की तरह ट्रीट करते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ लॉ वैसे इंडिया का पार्ट है, डीम टू बी फॉरेन टेरिटरी। मान लिया था IGPT फॉरेन टेरिटरी, लॉस क्योंकि सब कुछ अलग चल रहा है यहां पे। अच्छा कोई गुड्स अगर DTA से SEZ में जाएंगे, someone is selling the goods from DTA to the SEZ, इसको बोलते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट। और एक्चुअल एक्सपोर्ट क्या होता है, जब इंडिया से बाहर जाते हैं, ये एक्चुअली इंडिया के अंदर ही है, डीमिंग फिक्शन मान लिया जाए एक्सपोर्ट ही हो रहा है। तो कई बार क्या होता है जब ये चीज होती है जिसमें एक्सपोर्ट के जो बेनिफिट्स होते हैं वहां यहां भी मिलते हैं, तो डीम टू बी एक्सपोर्ट। उल्टा अगर SEZ से DTA में आएंगे तो क्या होगा, डीम्ड इंपोर्ट। जैसे कि हम कोई दूसरे कंट्री से बाहर में बोले ये है इंडिया का पार्ट है बट ट्रीटेड लाइक अ फॉरेन टेरिटरी। अच्छा देखिए इनकम टैक्स रेट पढ़ते हो, वो पूरे कंट्री में लगता है, पूरे कंट्री में तो ये भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कई चीजें हम डिफरेंट तरीके से लगाते हैं, वैसे नहीं लगाते जो नॉर्मली लगता है, तो उसके लिए मुझे अलग मानना पड़ेगा इसको, इसलिए डीम टू बी अ फॉरेन टेरिटरी। तो यहाँ अगर गुड्स जा रहे हैं फ्रॉम DTA डीम्ड एक्सपोर्ट, अब वहां से बाहर दैट इज डीम्ड इंपोर्ट। बट डिटेल में बाकी जब टॉपिक पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको। Deemed export, deemed import. So broadly, this is the what we call introduction of the chapters which are in part 1, foreign exchange management and NBFC तो मैंने बताया नॉन बैंकिंग, और RBI एक्ट मैंने बताया कि RBI being a regulator, तो ब्रॉडली मैंने जो भी मेजर टॉपिक्स है उसके बारे में सब ब्रीफली बता दिया। जो पार्ट 2 ऑफ दिस पेपर है इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लॉज, दादा इकोनॉमिक लॉज इन दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों, एंड इसका नाम है कॉम्पिटिशन लॉ। कॉम्पिटिशन लॉ पार्ट 2, दिस इज ऑफ 25 मार्क्स। इसके अंदर एक ही एक्ट 25 नंबर में कंपटीशन एक्ट,
कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, ओनली वन टॉपिक। वैसे देखा जाए उधर भी पार्ट 1 के अंदर बताया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट मैंने बताया वही 25 नंबर के आसपास का ही होगा। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। इससे पहले एक लॉ हुआ करता था एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। ये अब खत्म हो गया, इसकी जगह किसने ले लिया? कॉम्पिटिशन एक्ट। तो आप देख रहे हैं रिसेंट एक्ट है, लेकिन वी हैड द लॉ रिलेटिंग टू सेम आइडिया, कॉम्पिटिशन लॉ वी हैड। तो उससे पहले कॉम्पिटिशन से रिलेटेड लॉ था वो कौन सा? एमआरटीपी एक्ट था 1969, दैट वाज अबॉलिश। उसकी जगह कौन सा है? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। आप जानते हैं 1991 इंडिया अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। तो 91 के बाद पुराने सारी पॉलिसी लॉ सब आपको रिडेंडेंट हो गए। दैट्स व्हाई इट वाज थॉट दैट टू हैव अ न्यू लॉ, न्यू पॉलिसी, तो सब जगह इंपैक्ट है। इनफैक्ट कंपनीज एक्ट भी नया ऐसे लिया है, जीएसटी, ये फेमा, आप सब देखें, सेबी एक्ट 1992। अच्छा, सेबी एक्ट 90, सेबी खुद 92 में एग्जिस्टेंस में आया, तो सेबी से पहले कुछ और था। अब सब 91 के बाद आप देख रहे हैं चेंज, क्योंकि 91 वी हैव adopted a very major policy of liberalization, that's why उसका सब जगह impact है। अच्छा, एक चीज बताओ, कंपटीशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी और बैड फॉर द इकोनॉमी? कंपटीशन इज गुड और बैड? इतना जानते होंगे यार। कंपटीशन ऑलवेज गुड, मोनोपोली इज ऑलवेज बैड। अच्छा, मोनोपोली में क्या हमेशा जिसकी मोनोपोली है क्या एक्सप्लॉइट करता है, अनाप शनाप रेट रख देगा, ये रख देगा। ये लॉ बेसिकली कंपटीशन को प्रमोट करता है। और जो एंटी कॉम्पिटिटिव ट्रेड प्रैक्टिस में जो इंडल्ज होते हैं, कोई अगर समवन इज ट्राइंग टू एंटर इनटू एंटी कॉम्पिटिटिव ट्रेड प्रैक्टिस, तो इसके ऊपर ये प्रोहिबिशन लगाता है कि आप एंटी कॉम्पिटिटिव कंपटीशन को हमें प्रमोट करना। एंटी कॉम्पिटिटिव डायल्यूटिंग द कंपटीशन, अगर समवन इज ट्राइंग टू डू दैट, उसको प्रोहिबिट करता है कि साहब ये अलाउड नहीं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अच्छा, नॉर्मली एक बिजनेस में बहुत सारी कंपनीज हैं जो सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस कर रही है। वो कंपनी अपने प्रोडक्ट का रेट बढ़ाते समय हमेशा सोचती है कि अगर हमने रेट बढ़ा दिया और राइवल कंपटीशन में जो और कंपनी, जो राइवल कंपनी ने रेट नहीं बढ़ाया, तो हमारे प्रोडक्ट की सेल कम हो सकती है। रीजन भी लोग महंगा नहीं खरीदेंगे, इस कारण से रेट पे कंट्रोल रहता है। एक बार क्या हुआ, तो बहुत सारी सीमेंट कंपनीज ने एक टर्म बोलते हैं कार्टेल ग्रुप बना लिया, एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग बिठा लिया आपस में, कार्टेलरी ग्रुप। मैं बताऊंगा डिटेल में, सब जो चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको। और जितनी मेजर हिंदुस्तान की जितनी मेजर कंपनी, सीमेंट कंपनी, सब इकट्ठी हो गई और बोलते हैं जब रेट बढ़ाए सब इकट्ठे रेट बढ़ाए। अच्छा, वो डर खत्म हो गया, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, व्हेन यू फॉर्म अ कार्टेल ग्रुप बना लिया, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, तो भाई नॉर्मली क्या होता है, अपना रेट बढ़ाने में डर होता है, दूसरे नहीं बढ़ाया तो मेरा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। लेकिन चक्कर आपने ग्रुप बना के ऐसा कर रहे हैं, अजय कॉम्पिटिशन को प्रमोट कर रहा है, डायल्यूट कर रहा है, डायल्यूट कर रहा है। एक्चुअली इस एक्ट के अंदर जो रेगुलेटरी बॉडी, मेन जो बॉडी है इस एक्ट के, उसका नाम है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट वी कॉल इट सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई। इसके बाद एक कंप्लेंट आई, इसने इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेशन का पता लगा सब इन्होंने ऐसा किया था, मिल के इन सब ने प्लानिंग की थी, और उन्होंने उस चक्कर में पता क्या था, 6-8 महीने के अंदर सीमेंट के जो ओरिजिनल रेट थे 60-65% रेट बढ़ गए सभी कंपनी के। कारण क्या, उनको कोई परेशानी तो थी नहीं, कारण क्या, कॉमन अंडरस्टैंडिंग, बट इट वाज promoting the competition against the competition। तो सीसीआई ने इसको इन्वेस्टिगेट किया और इन सारी सीमेंट कंपनी जिस कार्टेल का पार्ट थी, इन सबको पेनल्टी लगा दी, बिकॉज यू आर इंडल्जिंग इनटू एंटी कॉम्पिटिटिव ट्रेड प्रैक्टिस विच इज नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। प्रोहिबिट करता है एक्ट। एंड यू विल सरप्राइज टू नो, सीसीआई बहुत पावरफुल अथॉरिटी, सीसीआई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। सीसीआई ने सारी सीमेंट कंपनी जिसका पार्ट थी, जिन्होंने मिलकर ये अंडरस्टैंडिंग बिठा रखी थी, 6,000 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी थी। पेनल्टी ऑफ 6,000 करोड़ आपस में आप शेयर करके बांट, लेकिन आपको ये जमा कराना है, बिकॉज यू आर इंडल्जिंग इनटू एंटी कंपटीशन। ये तो बड़ा होता है कि एक्चुअली क्या होता है, धीरे धीरे आप समझोगे सब कंपटीशन भी क्यों जरूरी है। कई लोग क्या करते हैं, कंपटीशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे आप लोगों ने सुना होगा या कई बार हम सुनते हैं, कई छोटे छोटे शहरों में होता है, 12th का बच्चा है, कॉमर्स ले रखा है। अच्छा, उसने 12th में नॉर्मली लोग डिसाइड करते हैं आगे मैं क्या करूंगा। अगर उसने डिसाइड किया मैं सीएस करूंगा,
तो 12th के टीचर 12th के अंदर ही उससे CS फाउंडेशन की फीस रखवा लेते हैं, जिससे कि बाद में बताया और चीज एक्सप्लोर करेगा, एक्सप्लोर ही नहीं कर देते. व्हाट इज दैट? इट्स आल्सो एंटी कॉम्पिटिटिव. अच्छा, आप में अगर है काबिलियत तो आप बच्चों को बांध क्यों रहे हैं? इफ यू आर रियली कैपेबिलिटी, वो सब पीछे रीजन ही होते हैं. उसको इनसिक्योरिटी है कि भैया एक बार 12th करने के बाद 4 जगह देखेगा जो CS में पढ़ा रहे हैं, पता नहीं मेरे पास आएगा नहीं, पहले ही फीस रखवा ली. तो ये सब एक्चुअली क्या, कहीं ना कहीं इनसिक्योर. तो अगर ढंग से समझोगे ना तो आप लगेगा भाई एक्चुअली ये फेयर नहीं है. इट्स ऑल इन द रॉन्ग प्रैक्टिसेस, ऑल रॉन्ग. अच्छा, अल्टीमेटली फंसा लिया, पढ़ाना आता नहीं है, बच्चों को फंसा के रखे हुए, तो बच्चे खराब होते रहते. पूरी जनरेशन हिंदुस्तान में खराब क्यों? उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं. कुछ लोगों का अप्रोच, कुछ लोग गाइड करने वाले, उनका अपना पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट होता है. वो अपने चक्कर में लगे, उनको मतलब नहीं बच्चे क्या फायदा, उसको मतलब मेरा क्या फायदा है. वो बच्चे को मिसगाइड करते रहते हैं. वो तो ये सब देखा, ये भी तो क्या है, फेयर. इट्स ऑल अनफेयर प्रैक्टिसेस. एनीवे, बाकी बहुत डिटेल में बात करेंगे. हम देखें पूरा 25 मार्क्स ऑन वन टॉपिक, बट इस वेरी डिटेल में पढ़ना है कॉम्पिटिशन एक्ट. तो देखा जाएगा पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के देखेंगे. तो एक तरफ वहां फेमा और यहाँ पे क्या है, कॉम्पिटिशन एक्ट. नाउ कमिंग टू पार्ट 3 ऑफ दिस पेपर. Part 3 of this paper, that is the business and commercial laws. ये मैंने बताया 35 मार्क्स का है. And here you 12 laws. तो बता दें यहाँ पे इसलिए एक्सपर्ट लेवल नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड, ओनली वर्किंग लेवल नॉलेज. इसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं. बिजनेस लॉज अलग है और कॉमर्शियल लॉज अलग है. तो बिजनेस लॉज के अंदर वी हैव 5 लॉज. वन इज दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ये रिपीटेशन ऑफ फाउंडेशन का देखा जाए. सेल ऑफ गुड्स एक्ट, उस सब है, लेकिन मेन प्रोविजन, सारा कुछ नहीं है. इन टॉपिक से मेन प्रोविजन है. नंबर 3 पार्टनरशिप एक्ट. नंबर 4 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. ये सब आपने फाउंडेशन में पढ़े हैं. बट द इंटायर लॉज जैसे इसके सारे कंटेंट फाउंडेशन में, क्योंकि मेजर पार्ट ऑफ द पेपर ये था, यहां से उनके मेन प्रोविजन है. एंड इसके अलावा बिजनेस लॉ में एक चीज और है, दैट इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में कंसेप्ट पढ़ा हमने, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब होता है, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. उसमें रेमेडी में एक होता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कुछ याद रहा है? यू कैन फाइल ए सूट फॉर कंपनसेशन, यू कैन फाइल ए सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? सामने वाले ने जो कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस किया उसको वही करवाना. ब्रीच का मतलब क्या, वो नहीं कर रहा है, ही इज डिनाइंग, रिफ्यूजिंग. आप कोर्ट में जाके उससे वही करवा रहे हैं जो उसने प्रॉमिस है. स्पेसिफिकली परफॉर्म यू हैव प्रॉमिस, मैं बदले में कंपनसेशन नहीं लूंगा. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. अच्छा, वो रिलीफ है फर्स्ट पार्टी को, रेमेडी है. ऐसी चीज लॉ से गवर्न होती है, उसके अलग से लॉ है. देखा है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 अल्टीमेटली मे बी स्पेसिफिक परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट कंसेप्ट आएगा. डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में आपको, ठीक है? जैसे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ. A is agreed to buy a car, B has agreed to sell the car at a price of rupees, let's say 5 lakhs. B सेलर है, A बायर है. B ने मना कर दिया बाद में, क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद मना कर दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, A अगर कोर्ट में जाके B के अगेंस्ट कंपनसेशन मांगे, रिलीफ रेमेडी वो भी है, और वो क्या है? कंपनसेटरी रिलीफ है. लेकिन A कोर्ट में जाए, B के अगेंस्ट रिक्वेस्ट करे कोर्ट को कि साहब B शुड बी ऑर्डर टू सेल द कार and I will not accept the compensation, and he has to sell the car, nothing less than that, and court so orders. तो B क्या
is providing the compensation to A or giving doing the specific performance contract. Specifically वही परफॉर्म कर रहा है जो उसने एग्री किया था. अच्छा, जब कोर्ट के ऑर्डर से बी कार सेल करेगा ए को, क्या ए को रिलीफ मिल रही है? एंड दिस काइंड रिलीफ इज कॉल्ड स्पेसिफिक रिलीफ, स्पेसिफिकली गेटिंग व्हाट यू आर एंटाइटल्ड फॉर. ऐसी चीजें गवर्न होती है बाय स्पेशल लॉ कॉल्ड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963. नाउ कमिंग टू कमर्शियल लॉस. We have 7 commercial law part of this. आप देखें टोटल 12 लॉज आपके, इसलिए वर्किंग लेवल नॉलेज बहुत डिटेल में नहीं है. फर्स्ट इज दैट इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. Number 2, Essential Commodities Act. Number 3, Legal Metrology Act. Number 4, Consumer Protection Act, Essential Commodity, Legal Metrology. Number 4, Transfer of Property Act. Number 5, that is the Real Estate Regulation and Development Act. सुना आजकल एक नया लॉ है रेरा, सुना होगा, रियल स्टेट रिलेटेड, यही है, इसको शॉर्ट में 2016 में आया, रियल स्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट, रेरा, वेरी रिसेंट लॉ. Number 6, Prevention of Money Laundering Act. मनी लॉन्ड्रिंग होता था कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी. लोग उल्टे सीधे तरीके से पैसे कमाते हैं. सुना, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स होते हैं, किसी की भी सुपा, सुना होगा, बम्बईया भाषा में होते ना, सुपारी लेके मार देना, मर्डर कर देना, किडनैपिंग, रैंसम मांगते हैं ना, फिरौती के पैसे मांगते हैं, सबके इलीगल आर्म्स एंड एमुनेशंस की आप क्या नाम है स्मगलिंग करते हैं, ये सब गलत तरीके पैसे कमा रहे हैं, वो ब्लैक मनी है, उसको आप कन्वर्ट करते हैं इनटू व्हाइट, दैट इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग. शुड बी अलाउड और नॉट अलाउड? नॉट अलाउड. उसके लिए लॉ कौन सा बना रखा है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. एंड वन मोर इज देयर, वो भी रिसेंट लॉ है, बेनामी ट्रांजेक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट. बेनामी ट्रांजेक्शन का मतलब नाम से बताया, बेनामी ट्रांजेक्शन कर कोई और रहा है लेकिन अपने नाम में नहीं किसी और के नाम में कर रहा है, और ये बात हिडन है, डिस्क्लोज नहीं है, सीक्रेट है. इसका तो कुछ ना कुछ रॉन्ग इंटेंशन है. आप अपना पैसा लगा रहे हैं किसी ट्रांजेक्शन में, नहीं किसी और के नाम में कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? आप उस बात को डिस्क्लोज भी नहीं कर रहे हैं. तो ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं बेनामी ट्रांजेक्शंस, एंड ये इलीगल होते हैं. इनको प्रोहिबिट करने के लिए अभी रिसेंट लॉ, ये भी एक रिसेंट लॉ बना है, एंड बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन इज द रिसेंट लॉ. इसमें देखा जाए ये दो 5 नंबर और 7 एकदम रिसेंट लॉज हैं, क्योंकि अभी आपका न्यू सिलेबस एंड ऑल दैट, ये सब इन्होंने ओल्ड सिलेबस में ये सब टॉपिक थे नहीं आपके. ये 5 नंबर 7 नंबर, दिस वर नॉट अ पार्ट ऑफ द ओल्ड सिलेबस. तो देयर आर 7 लॉज एज अ पार्ट ऑफ कमर्शियल लॉ. तो ओवरऑल पार्ट 3 जो बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज. तो बिजनेस लॉ के अंदर 5 टॉपिक आ गए, जिसमें 4 तो रिपीटेशन देखा जाए फाउंडेशन का, नॉट द एंटायर द कंटेंट्स बट सम मेजर कंटेंट्स आर देयर. एंड दिस 7 लॉज विच आर न्यू फॉर यू, और उसमें एक स्पेसिफिक लीव एक्ट आपके लिए नया है. तो देखा जाए 7 और एक वहाँ 8 नए जो हैं, और 4 तो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए, ठीक है, बट उसके मेन प्रोविजन सिलेबस में. बट स्टिल 12 लॉज इन 35 मार्क्स आपसे कवरेज करना बड़ा मुश्किल होगा, एंड इसलिए इंस्टीट्यूट ने वर्किंग लेवल नॉलेज बहुत डिटेल में लिखा है. तो देखा जाए फोकस एरिया अगर देखें, वहाँ पे फेमा पार्ट 1 में, पार्ट 2 तो है ही एक ही टॉपिक कॉम्पिटिशन एक्ट, और यहाँ पे आप कह सकते हैं कमर्शियल लॉ ज्यादा आपका. बिजनेस लॉ में कोई काफी रिपीटेशन है आपको देखा जाए फाउंडेशन से, एंड कमर्शियल लॉ. दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर. तो मैंने तीनों पोर्शन बता दिए, टॉपिक्स बता दिए, और रफली
चैप्टर वाइज देखें तो 12 चैप्टर वहां पे, लेकिन 12 मैंने बताया वो फेमस रिलेटेड कई सारे चैप्टर उन्होंने बना रखे हैं। तो वो आपके इंस्टीट्यूट ने सिलेबस के हिसाब से देखो तो 24 चैप्टर बना रखे हैं। तो 12 चैप्टर पार्ट 1 और 2 के, पार्ट 1 में 11 बना रखे, लेकिन 11 में देखा जाए एक्ट 6 ही है जो मैंने लिखवाए थे। फेमा से रिलेटेड कई सारे चैप्टर बना रखे उन्होंने, फेमा को डिवाइड किया हुआ कई सारे चैप्टर में। और 12 लॉ आपके किसके अंदर है, पार्ट 3 दैट इज बिजनेस एंड कमर्शियल लॉस। तो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रो ऑफ दिस पेपर कि क्या आपका पेपर है, इसमें क्या कवरेज एंड ऑल। ठीक है, first two part expert level knowledge and last part that is part 3 that is the first two part is collectively the economic laws. तो पेपर का ना इकोनॉमिक बिजनेस कमर्शियल लॉ, पार्ट 3 that is 35 मार्क्स की बिजनेस। इसे मैंने बिजनेस लॉ 5 टॉपिक बताया और कमर्शियल लॉ 7 टॉपिक। इज दैट ओके? दैट इज ऑल फॉर as far the introduction of this paper is concerned, economic business commercial laws. So we wind up today's class. ठीक है, if you have any doubt you can ask the same.